Assalamu alaikum students, welcome in Mathematics Point. I hope so you are well. Students, today we are here with chapter 2, expansion and simplification of quadratic expression, exercise 2a of your book D2. Now move towards the exercise. Okay ji, today we will do question number 6 and 7. Okay, so again in the previous video we learned the concept of distributive law. So again we are working with that law. So I just write down the standard form distributive law over here, b plus c, and the standard form is ab. First of all, a will be multiplied with a, and then after in that with c, ac, and here we have the plus sign, so plus plus plus, so here will be the plus ac. Okay, so this is the standard form distributive law. By using this law, now we solve the question. So I just write down the question 6 part a. And the question 6 part, expand and simplify each of the following expression, and the expression is 7 2a plus 1 minus 4 8a plus 3. So here we just revise the concept of expression. Expression is a combination of two or more terms that combine with arithmetic signs, addition, subtraction, multiplication and division. ठीक है, the term will be constant as well as the variable combination of the constant variables such as 2, 2x, 2y, whatever. So these are called the terms. 2 is any constant, maybe any number. So here we just apply the distributive law. 7 will be multiplied first of all by first term inside the bracket and then the second term, and you maybe have more than 2 or 3 terms, so you have to multiply one by one with all the terms that is inside the bracket. Okay ji, 2 7s are 14, and we have a variable a, so you have to write in the variable as well. Then 7 plus plus plus, 7 1s are 7. ठीक है, तो we have done with this bracket. Then multiply minus 4 with all the terms inside the bracket. Plus minus minus, 8 के साथ कोई sign है, so there is a sign of plus, so plus minus minus, and 8 4s are 32. So you have to write down here, and then we have a variable a, so variable भी इसी तरह आ जाएगा. Then minus plus here minus, and 3 4s are 12, तो हमने यहाँ पे लिख दिया. अब देखो जो आपके पास बेस सेम के साथ है ना, उनको एक साथ रख लेने. यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो इसके कोफिशिएंट्स के साथ हम वर्कआउट कर सकते हैं, इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो 14 माइनस 32a प्लस 7, और सेकेंड कॉन्स्टेंट आपके पास है 12. चलिए जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 14 माइनस 32 माइनस 18, सो माइनस 18a, और यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5. 12 माइनस 7, सो दिस इज़ 5. ग्रेटर टर्म के साथ माइनस का साइन है, तो हमने यहाँ पे 5 के साथ माइनस पुट कर दिया. अब सेकंड क्वेश्चन इसका. अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, वो सारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे फॉलो कर रहा है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करते हुए हमारे पास सारे पार्ट्स एक जैसे मेथड्स हैं. यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है इनमें, सिर्फ टर्म्स चेंज हुई हुई है कि इनमें साइंस चेंज किए हुए, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि आपने किस साइन को किस तरह से मल्टीप्लाई करने है. बाकी सब कुछ आपके पास वही मेथड है, सेम है. ओके जी, 3 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म के साथ. अब इस वाले 3 को ना आपने लास्ट तक ब्रैकेट तक मल्टीप्लाई नहीं करना. इस 3 का सिर्फ यहाँ तक पोर्शन है, फिर ये आगे साइन माइनस का आ रहा है, इसका मतलब वो सेपरेट कर रहा है. ये नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, ये मल्टीप्लाई होगी इसके साथ. ठीक है, 2 इसके साथ, 3 इसके साथ. ये नहीं कि एक ही 3 को लेके सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं. सो 3 2s are 6. वेरिएबल बी है हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, 3 1s are 3. देन 2 मल्टीप्लाई होगा, और ये -2 है, सो -2 को मल्टीप्लाई करें. प्लस minus plus minus, 2 5s are 10, and we have a variable here b. then minus minus, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, and 2 3s are 6. अब सेम वेरिएबल्स को एक साथ रख लें. 6b प्लस -10 था, सो -10b -3 एंड प्लस 6. 6 माइनस 10 आपके पास 4 -4 आ जाएगा, एंड हमारे पास -3 प्लस 6 हमारे पास 3 आ जाएगा, और इसको हमने कर लिया सॉल्व. नाउ मूव टूवर्ड्स पार्ट सी. ओके जी, अब 3c को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ. पार्ट सी हमने लिख लिया था यहाँ पे. 3 5s are 15, और 3 के साथ देखें वेरिएबल क्या है c, वो इसी तरह लिखा जाएगा. देन यही 3c आपके पास सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा. 3 के साथ कोई साइन नहीं, तो प्लस का साइन है, प्लस प्लस प्लस. 3 1s are 3, एंड c 2 टाइम से c आ गया, तो ये पावर ऐड होके स्क्वायर हो जाएगी.
देन -2c मल्टीप्लाई होगा सेकेंड टर्म के साथ माइनस प्लस माइनस, 2 3 ज़र 6, c ज़र c स्क्वायर, देन माइनस माइनस here प्लस एंड 2 7 ज़र 14 एंड वी हैव अ वेरिएबल c। अब जो स्क्वायर वाली टर्म्स है ना हमने ऑर्डरली लिखना होता है, उनको हम पहले लिखेंगे 3c स्क्वायर, देन -6c स्क्वायर, स्क्वायर पहले हो गया। अब इसके बाद 1 पावर वाला आएगा, c की पावर 1 जो है, c की पावर 1 को मेंशन नहीं करते ना हम, 1 पावर हो, वरना यहाँ पे कोई पावर नहीं तो यहाँ पे 1 है, और इसको 14c। अब आपने कोफिशिएंट्स को सॉल्व कर लेना है। 6 - 3 3 आएगा, ग्रेटर टर्म का साइन के साथ माइनस है माइनस, और यहाँ पे वेरिएबल, देन 15 और 14 ऐड हो रहे हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 29c। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पार्ट सी हो गया। अब हम मूव करते हैं पार्ट डी की तरफ। अच्छा, जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो देखो सारे क्वेश्चंस ना एक साथ हैं, एक ही जैसे मेथड्स हैं, कुछ भी इनमें डिफरेंस नहीं है। तो आपने सारी वीडियो प्ले करके क्वेश्चंस को देख के नहीं करना, आपने एक दो क्वेश्चंस को अच्छे से आप देखें, उनसे आप लर्न करें, सीखें मेथड, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सारे क्वेश्चंस ना आप खुद करेंगे। हाँ, रीचेक के लिए आप कर सकते हैं कि आपने सी किया है कि नहीं किया, कितनी मिस्टेक तो नहीं हुई, तो तब आपने वीडियो प्ले कर लेनी है, लेकिन पहले आपने खुद से ट्राई करना है। और देखो इसमें मुश्किल बिल्कुल भी कुछ नहीं है, एक दफ़ा मैंने स्टार्ट में जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको बताया सारे क्वेश्चंस वैसे ही हो रहे हैं। अब देखें 2d मल्टीप्लाई हो रही है इस ब्रैकेट के साथ, हम 2d को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 ज़र 6, कोफिशिएंट्स को आपस में किया और वेरिएबल्स आपस में होंगे, d स्क्वायर, देन प्लस माइनस माइनस, 2 5 ज़र 10 और ये आ गया d हमारे पास, देन माइनस d मल्टीप्लाई होगा 2d एंड देन माइनस माइनस प्लस और d ज़र d स्क्वायर। 2d कैसे आया, d के साथ कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट 1 है, 2 1 ज़र 2 और d इसी तरह आया। अब आप स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ रख लो, d स्क्वायर प्लस d माइनस 10d और माइनस 2d, इसका कोफिशिएंट 1 है, 6 और प्लस 1 7d स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का साइन है लेकिन टर्म्स ऐड हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा 12d। एक मैं बात आपको यहाँ पे बता दूँ, हमारे पास ना मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो यहाँ पे फिनिश हो गया। एक पॉइंट समझ लें आप, आपके पास अगर d स्क्वायर प्लस 4d है और दूसरी आपके पास है d स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4d। अब देखें दोनों में डिफरेंस क्या है, जब प्लस या माइनस का साइन होगा ना तो आपके पास सोल्व भी तब होते हैं जब आपके पास पूरे पूरे वेरिएबल एक ऐसे हों, जैसे d स्क्वायर है तो d स्क्वायर है। ठीक है, मैं इनके कोफिशिएंट्स को सोल्व कर सकती हूँ। 4 + 1 मेरे पास आ जाएगा 5, और वेरिएबल क्या था आपके पास, बेस क्या थी, d स्क्वायर। यहाँ पे आप नोट करें मैंने पावर्स को ऐड नहीं किया। अब जबकि ये क्वेश्चन देखें, हमारे पास 4 1 ज़र 4, कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 4 आ जाएगा, d मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 2 आपके पास हो जाएगा 4। ठीक है, सो मल्टीप्लाई में आपके पास पावर्स ऐड होती हैं, जबकि आपके पास कोफिशिएंट्स के साथ सिर्फ वर्कआउट होता है प्लस और माइनस में। आई होप सो अब ये आपको ना क्लियर हो जाएगा कि मैं किसी जगह पावर्स ऐड कर देती हूँ, किसी जगह नहीं करती, तो इसके बीच लॉजिक क्या है कि हम प्लस और माइनस को देख रहे होते हैं। अच्छा जी, पार्ट एफ लिख देते हैं हमारे पास, -f 9 - 2f ब्रैकेट क्लोज, देन 4f एंड f - 8। ठीक है, अब देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट के साथ माइनस माइनस आया हुआ है तो हम इसको साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी लॉजिक हमारे पास सेम रहेगी। -f मल्टीप्लाई हो रहा है, सो f के साथ कोफिशिएंट 1 है ना, तो 9 1 ज़र 9 प्लस माइनस माइनस और f इसी तरह आएगा। ठीक हो गया, देन इसको मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस, f का कोफिशिएंट 1 है तो 2 1 ज़र 2 एंड मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, f स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है और इस f की भी पावर 1 है। देन ये प्लस का साइन, प्लस प्लस प्लस, 4 1 ज़र 4 एंड f स्क्वायर, then x plus minus minus, 4 8 ज़र 32 and we have a variable f here। अब जो सेम आपके पास टर्म्स है ना स्क्वायर्स वाली, उनके एक साथ लिख लें वेरिएबल्स, 2f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर, देन f वाली टर्म्स को एक साथ 9f एंड -32f। सो 4 + 2 6f स्क्वायर। देखें यहाँ पे मैंने पावर्स ऐड नहीं की क्योंकि मैं प्लस करूँ, प्लस में पावर्स ऐड नहीं होती हैं। ठीक है, एंड माइनस का साइन है तो माइनस करेगा दोनों टर्म्स के साथ, लेकिन सिमिलर साइन जब भी होना है तो टर्म्स ऐड हो जाते हैं। कोफिशिएंट्स को ऐड कर दिए, 32 + 9 41 एंड वेरिएबल f ही रहेगा। यहाँ पे f स्क्वायर नहीं कर दीजिएगा क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, माइनस हो रहे हैं टर्म्स। ओके जी, नेक्स्ट अब हमारे पास है 2h, तो प्लस माइनस 2 के साथ माइनस है ना, अंदर मल्टीप्लाई होगा ये भी सब के साथ, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़र 6 एंड हमारे पास वेरिएबल h इसी तरह, देन
प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़र 8 और h मल्टीप्लाई होगी h स्क्वायर कर देंगे। देन प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़र 5 एंड h ज़र h स्क्वायर। देन माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़र 5 और वेरिएबल साथ h इसी तरह आ जाएगा। अब हम करते हैं h स्क्वायर वाली टर्म्स को पहले लिख लेते हैं ऑर्डरली। माइनस 8h स्क्वायर माइनस 5h स्क्वायर माइनस 6h ये वाली टर्म होगी एंड देन प्लस 5h ये वाली टर्म होगी। सोल्व करिए। माइनस का साइन दोनों टर्म्स के साथ हैं तो टर्म्स ऐड होंगी लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। ठीक है, हमारे पास 8 प्लस 5 हमारे पास हो गए 13, यहाँ पे वेरिएबल था h स्क्वायर उसी तरह। देन 6 और 5 ऑपोजिट साइन आ रहे हैं, प्लस माइनस टर्म्स माइनस हो जाएंगी, साइन ग्रेटर टर्म का आएगा सो माइनस। और 1h 1 को ना भी लिखें तो आप नेक्स्ट स्टेप में बेशक रिमूव कर दें क्योंकि कोफिशिएंट 1 होना तो हम इसको लिखते नहीं होते माइनस h करके। सो ये हमारे पास लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास है। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको एक्सप्रेशंस दी हुई है और आपने एक्सपेंड करनी है। और हम कैसे एक्सपेंड करेंगे? वी नो द लॉ दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो उसके थ्रू हमने इसको एक्सपेंड करना है और ये बिल्कुल सिमिलर है, हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया इस मेथड से भी, तो ये बिल्कुल हमारे पास वैसे ही है। सो हम एक्सपेंड कर लेते हैं ब्रैकेट को। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट आप तब करेंगे जब आपको अच्छे से स्किल आ जाएगी इस क्वेश्चन की। उसके बगैर आपने एक्सपेंडेड फॉर्म के अलावा नहीं करना क्योंकि आपका इनिशियल स्टेज है। यहाँ से जो ये ए है ना, ये इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह रिवर्स करो तो ये ए दोनों टर्म्स के साथ और -9 दोनों टर्म्स के साथ। मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 2 ज़र 2 हो या 2 1 ज़र 2 हो, आंसर आपके पास सेम आना होता है। मैं फर्स्ट ब्रैकेट को हमेशा एक्सपेंड करती हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो सेकेंड के थ्रू एक्सपेंड कर लेते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ए मल्टीप्लाई होगा इन बोथ टर्म्स के साथ, तो देखिए मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे नोट कीजिएगा, यहाँ पे कोई साइन नहीं प्लेस करना, बीच में कोई साइन नहीं तो उसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देन नेक्स्ट टर्म है मेरे पास +1, उसको लिख लिया, वो भी किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं? इस पूरी टर्म के साथ। ठीक हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय 1 बाय अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट की, जो कि ए है। मल्टीप्लाई में वेरिएबल सेम हो तो पावर्स आपके पास ऐड हो जाती हैं, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। देन ए मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से और कांस्टेंट पहले आता है, वेरिएबल बाद में लिखना होता है आपने, तो 9 पहले आ जाएगा और 1 बाद में। देन प्लस 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 1a, अगर आप चाहो तो 1a लिख लो, वरना डायरेक्ट a लिख लो, कोफिशिएंट ना 1 लिखने की ज़रूरत होती ही नहीं है हमें। देन प्लस माइनस माइनस एंड 9 1 ज़र 9। अब स्केयर वाली टर्म पहले होगी क्योंकि ऑर्डरली लिखना होता है। 9 - 1, देखो -9 है और +1 है, ऑपोजिट साइन आ गए ना, तो जब भी ऑपोजिट साइन आएंगे तो आपने टर्म्स को हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है। सो 9 में से 1 माइनस करके 8 लिख दिया। ठीक है, बेस क्या थी आपके पास? a, वो लिखी। अब साइन कौन सा आएगा? जो कि ग्रेटर टर्म के साथ है, और यहाँ पे -9 करके आंसर हमारा हो गया। एक स्टेप यहाँ पे नोट करें, जब मैं क्लास में क्वेश्चन करवा लेती हूँ हम कहते हैं 9 - 1 करें, तो इस स्टेप को मैं यहाँ पे री राइट कर रही हूँ, बल्कि मैं कलर चेंज कर देती हूँ प्रोमिनेंट हो जाए, इसको मैं री राइट कर रही हूँ। ठीक है, ये एक स्टूडेंट क्या करते हैं, जब उनको 9 में से 1 माइनस करना होता है तो वो इस तरह करके लिख देते हैं। 9 में से 1 माइनस करना है, 9a - 1a, सपोज ऐसे कर देंगे। सो जब आप ऐसे करेंगे ना, तो देखो आपके पास 9 का यहाँ पे माइनस का साइन था, यहाँ पे प्लस बन जाता है, ये प्लस होते ही माइनस, तो आप अपना क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं। इस तरह से नहीं करना, वर्किंग में माइनस करके डायरेक्ट यहाँ पे 8 लिखते हैं, या आप फिर माइनस कॉमन ले, जो कि आई थिंक सो आपको भी कॉन्सेप्ट होगा। सो आपने क्या करना है, वर्किंग में माइनस करके ना यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है, इस तरह से नहीं करना, ऐसे। अगर आपको ऐसे करने को है, आपने ऐसे करना चाहते हो, सो माइनस पर कॉमन लोगे और तब सोल्व करोगे, वरना नहीं करना इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही करना है जैसे मैंने भी किया। नाउ द सेकेंड पार्ट दिस क्वेश्चन। ओके जी, सेकेंड पार्ट है हमारे पास b - 2 एंड b + 7। सो b को एक्सपेंड करते हैं 1 बाय 1। b + 7 ये वाली ब्रैकेट, देन -2 इसका, इसके थ्रू एक्सपेंड करें एंड b + 7। ठीक हो गया। अब 1 बाय 1 एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। b ज़र b स्क्वायर, देन b 7 ज़र b 7, देन प्लस माइनस -2b एंड माइनस प्लस -2 7 ज़र 14, फिर b स्क्वायर, और यहाँ पे इनकी कोफिशिएंट सोल्व कर दे, ग्रेटर टर्म का साइन आ जाएगा 7 - 2 5, वेरिएबल जो बेस है उसको ज़रूर लिखिएगा आप, और फिर आपके पास होता है 14 और आंसर हो गया सिंप्लीफाई। कैसे सिंप्लीफाई हो गया? कुछ स्टूडेंट्स हैं इसको आगे भी सोल्व कर देते हैं।
आगे नहीं करना। देखो अब बी स्केयर और बी है, बी स्केयर और बी में डिफरेंस है, ये सेम नहीं है। अगर यहाँ पे स्केयर होता ना या ये सिर्फ बी होता तो मैं इनके कोफिशिएंट्स को सोल्व कर सकती थी, जबकि अब ये डिफरेंट है और ये तो है ही कांस्टेंट, तो आप इनको सोल्व नहीं कर सकते। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आवर आंसर। नाउ मूव टुवर्ड्स द पार्ट सी। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है C-5 एंड C-6। इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लेते हैं C और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं C-6 देन -5 और फिर हो जाएगा C-6। मल्टीप्लाई करें 1 बाई 1, C पावर्स ऐड हो जाएंगी, C स्क्वायर, C6 6C और प्लस माइनस माइनस। देन हमारे पास है माइनस प्लस माइनस, 5C 5C माइनस माइनस प्लस 6 5 30 और यहाँ पे आ गया 30। अब ये यहाँ पे ये स्टेप सोल्व हो रहा है क्योंकि ये भी C है और ये भी C है, तो इनकी हमारे पास कोफिशिएंट सोल्व हो जाएंगे। C स्क्वायर इसी तरह आएगा, टर्म्स के साथ माइनस का साइन है तो कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा। 6 + 5 11 C एंड 30 आंसर। अब योर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सो इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द आंसर। ओके जी, पार्ट डी हमने लिख लिया, इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू एक्सपेंड करेंगे। 3D एक्सपेंड हो रहा है 5 - 2D के साथ, देन +1 गोइंग टू बी एक्सपेंडेड और मल्टीप्लाई बाय 5 - 2D। 1 बाय 1 करके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। 5 3 15, वेरिएबल हमारे पास D है, देन माइनस प्लस माइनस माइनस 3 2 6, इसका D और इसका D मल्टीप्लाई होकर D स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। देन 1 को मल्टीप्लाई करें, दोनों टर्म के साथ प्लस का साइन है, प्लस 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 1 5 5 प्लस माइनस माइनस 1 2 2D। अब हमारे पास जो इसको अरेंज करके लिखना है, सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगी D स्क्वायर वाली टर्म 6D स्क्वायर, फिर आपके पास जो D वाली टर्म्स हैं, 15 के पास स्टार्ट में कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन है, 15D माइनस, ये पहले लिख ली थी 15D - 2D ये वाली टर्म, और लास्ट में कांस्टेंट बच गया उसको लिख लिया। अब सॉल्व करते हैं, -6D स्क्वायर, यहाँ से ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो 15 - 2 हमारे पास +13D आ जाएगा एंड फिर 5। दिस इज़ द आंसर ऑफ आवर पार्ट डी। ओके जी, नाउ द पार्ट ई of question number 7. Again we have to apply the same law, distributive law. 1 will be expanded, this bracket will be expanded, we have to expand it 1 multiplied by 7f plus 6 and minus f multiplied by 7f plus 6. Apply करते हैं distributive law, 1 7s are 7 and we have a variable f here, then 1 6 are 6 plus plus plus, then plus minus minus 7 1s are 7, क्योंकि f का कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 है, एंड f स्क्वायर पावर से ऐड हो जाएंगी, माइनस प्लस माइनस एंड 6f। अब स्क्वायर वाली टर्म्स को स्टार्ट में लिख देते हैं हम, सो -7f स्क्वायर पहले लिख दिया, फिर प्लस 7f और -6f और देन कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा। अब -7f स्क्वायर, यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपके पास ग्रेटर टर्म का साइन आएगा और 7 + 6 1 को लिखें या ना लिखें आपकी अपनी मर्ज़ी है, और 1f आ जाता है या 1 लिख लिए और आपके पास कांस्टेंट 6। सो वी हैव डन विद आवर पार्ट ई। ओके जी, पार्ट एफ जो कि क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है, हम इसको करते हैं और उसी मेथड से करना है। हम इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लेते हैं। 4 फर्स्ट हमारे पास टर्म है, इसको एक्सपेंड करते हैं, रेस्ट ऑफ द ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन हमारे पास -3x है, सेकेंड टर्म के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं और ये भी हमारे पास 10 - 9h के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके जी, पहले 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ और फिर इसकी सेकेंड टर्म के साथ जो कि 9h है। ठीक है, 4 10 हमारे पास 40 हो गया, देन प्लस माइनस माइनस 9 4s are 36 और वेरिएबल h एज इट आएगा हमारे पास, देन प्लस माइनस माइनस 3 10s are 30 वेरिएबल h एंड माइनस माइनस प्लस 9 3s are 27 और h स्क्वायर। अब हम इसको अरेंज करके लिख देते हैं। h स्क्वायर सबसे पहले आ जाएगा, सो 27h स्क्वायर माइनस 36h माइनस 30h एंड देन कांस्टेंट 40। अब ये दोनों h वाली टर्म्स हैं, सो इनकी कोफिशिएंट सोल्व हो जाएंगे। 27h स्क्वायर माइनस का साइन आएगा लेकिन टर्म्स ऐड होंगी क्योंकि दोनों टर्म्स के साथ सेम साइन है, सो 6 एंड 6 -66h एंड 40। सो वी हैव डन विद आवर पार्ट एफ।
yes, part F for question number 7. So I hope so you understand these questions. Still, if you have any queries, so you can ask your query in the comment section. Till that, take yourself. Allah Hafiz. And at the last, very important that if you don't subscribe my channel till now, kindly subscribe the channel and press the bell icon. Take yourself. Allah Hafiz.